students, welcome to the next lecture on the last minute revision on the integral equations. If you watch this video till the end, you are definitely learn many shortcut tricks which will help you for the quick revision, which will help you for recall the concepts, and you are preparing for the examinations for the CSR Net GATE. Myself Dr. Harishkar, you can follow and subscribe my YouTube channel. We all know the general integral equation is defined in equation number 1, which are divided into the three forms depending upon the nature of the yx, depending upon the nature of the fx, and the nature of their limits, which I classified into the three forms. Fine. The Volterra equation is whenever your limits are variable. Fine. That means either the ax or bx is a function of the x, then it's called as a Volterra equation. Whenever both the limits are my constant, then we call as the Fredmol equations. Homogeneous, whenever you have the fx is my 0, then we call as the homogeneous, and whenever fx is my non-zero, we call as the non-homogeneous. And the first kind is whenever your yx, that is on the left hand side, is my 0, we call as the first kind, and the second kind is whenever it's a non-zero. For example, if you look about the first example, clearly say the limits is my variable, and when the limits are variable, we call as the Volterra equations. And fx is my non-zero, that is a non-homogeneous. Right hand side is my non-zero, that is my type number 2. So that is the second kind. Second one is you can see the limits are my constant, which is the Fredmol equations, and right fx is my non-zero, is a non-homogeneous, and it's a second type. While the third one is left hand side is my 0, that's why this is called as the first Fredmol, first Volterra kind equation. I can classify the today's lecture into the two category, the type 1 and the type 2. CSR नेट में इन्हीं दो टॉपिक के ऊपर ही आएगा आपको इंटीग्रल इक्वेशन के ऊपर, इसके अलावा कहीं और से नहीं आएगा. The type 1 is whenever you have to find the solutions and the resolvent kernel, और second category whenever you are interested to find the unique and the no solutions. फाइन. एक और क्वेश्चन होता है आपके पास ग्रीन फंक्शन के ऊपर, वो मैं ऑलरेडी अपने लास्ट लेक्चर अपलोड कर चुका हूं आपके लिए. जब कभी भी आपके पास इस लेक्चर में मैं टाइप 1 को एक्सप्लेन करता हूं, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो लेट मी नो, और आप अभी कमेंट करके बताइए क्या आप टाइप 2 इंटरेस्टेड हो देखने में. आई कैन अपलोड फॉर यू इन 24 आवर्स. जब भी आपको सोल्यूशन निकालना हो, हमेशा याद रखिए जो भी आपके पास इंटीग्रल इक्वेशन है उसमें आपको इस कर्नल को, दैट k is called as the kernel, you can replace the value of the kernel with the resolvent kernel and the y of t with the help of f of t, where r is called as the resolvent kernel. और आपका पर्पस यही है कि रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड कैसे करना है. जो ये फॉर्मूला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, नेवर यूज दैट, इट विल टेक यू एटलीस्ट 10 मिनट्स फॉर द कैलकुलेशन. फाइन. मैं आपको दो कैटेगरी में डिफाइन करूंगा, टाइप 1 एंड द टाइप 2. टाइप 2 मैं उसको कहूंगा जिसमें कर्नल में एक से ज्यादा टर्म्स हो, मोर देन वन टर्म. फाइन. मोर देन वन टर्म, दैट आई कॉल एज द टाइप 2. और टाइप 1 उसको कहेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है, जैसे ये प्रोडक्ट में एक ही क्वांटिटी है ना, मतलब बीच में प्लस या माइनस ना लिखा. क्लियर. तो ये दोनों टाइप्स हम फ्रेडमोल के लिए भी सॉल्व करेंगे और ये दोनों टाइप्स हम वोल्ट्रा के लिए भी सॉल्व करेंगे. इसका मतलब आपके पास चार तरह के फॉर्मूले बन जाएंगे. वोल्ट्रा के ऊपर भी टाइप 1 टाइप 2, फ्रेडमोल इक्वेशन के ऊपर भी टाइप 1 टाइप 2, और इन दोनों के ऊपर आपको सॉल्यूशन निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट ट्रिक्स. सबसे पहली शॉर्टकट ट्रिक्स वोल्ट्रा इक्वेशन के ऊपर. सबसे पहले यू हैव टू कंपेयर विद द कर्नल. इफ द कर्नल, लुक एट द लिमिट्स आर माय वेरिएबल्स, फाइन, दैट्स व्हाई इट्स अ वोल्ट्रा. अगर ये कर्नल आपके पास दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर गया, k of x comma x is 1 and the product is a 1, then your resolvent kernel you can write it directly as this quantity. Fine. So for example, I can pick any random example of the 2025. क्या ये property satisfied होती है? Clearly say k of x comma x 1 बन जाएगा because 3 plus sin x t cancel, and x comma t and t comma x it will be 1.
फाइन। सो देयरफॉर द रिजॉल्वेंट कर्नल, तो इस क्वेश्चन का रिजॉल्वेंट कर्नल कितना हो जाएगा आपके पास, e की पावर लैम्डा, लैम्डा इज द कोफिशिएंट ऑफ द इंटीग्रेशन 1 into x minus t of 3 plus sin x divided by 3 plus sin t। अब आप ऑप्शन में देख लेते हैं, इसमें रिजॉल्वेंट कर्नल पूछा नहीं है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है रिजॉल्वेंट कर्नल एट द पॉइंट 2,3, you can substitute the value and get the answer. Now you can find the solution fx। सिर्फ आपको क्या करना है, you have to replace the kernel with the resolvent kernel और इस u की जगह पे क्या लिख देना है, f of t। फाइन। तो whenever I can multiply with the resolvent into sin t, so ये कितना हो जाएगा x minus t 3 plus sin x, डिवाइडेड वाला तो कैंसिल हो जाएगा। नाउ यू कैन टेक द कॉमन, आपको इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t करना है, तो 3 plus sin x will be common, फाइन, एक्सप्रेशन विल बी 1, e की पावर x will be common, तो अंदर क्या बच गया, e की पावर माइनस ऑफ t। इफ यू इंटीग्रेट देम फ्रॉम 0 to x, द आंसर विल बी e की पावर माइनस x माइनस 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 प्लस 1। कितना आंसर हो गया ये, 3 प्लस साइन x, यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, ये दिस माइनस 1, so minus 1 will be cancel out, e raised to power x। Now you can get your answer। What is the answer of the pi by 2? 6, 3 plus pi by 2, 3 plus 1 4, 4 e की power pi by 2। Sin of pi, sin pi is 0, e की power 3 sin pi। u of minus pi, sin of minus pi 0, 3 e की power minus pi, that's a 4, cancel। Sin of minus pi 3 minus 1 e raised to power minus pi over 2, so the right answer are 1 and 2 is the correct answer। Look at the next one, your kernel is e की power 2 into t minus x। आपकी लिमिट्स वेरिएबल में है तो वोल्ट बाय इक्वेशन है, क्लियरली से द कर्नल विल सेटिस्फाइड माय बोथ द प्रॉपर्टीज। तो रिजॉल्वेंट कर्नल कितना हो गया, e की पावर लैम्डा, लैम्डा इज माय 2 x माइनस टी इंटू कर्नल, तो कितना आंसर आ गया ये, it will be cancel out, r will be my 1, so you can see the first option is the correct, second option is the wrong option। अब आप सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, e की पावर x प्लस ट्वाइस ln ऑफ 6 2x, इसकी जगह पे कितना हो जाएगा 1 इंटू u की जगह पे f ऑफ t, कितना आंसर हो जाएगा इसका, e की पावर x प्लस 2, e की पावर t का आंसर e की पावर t integration from ln 6 to x, that will be e की power x minus of 6, so your answer will be 3 times e raised to power x minus 12। now you can see the option u of ln 8, 3 into 8 minus 12 which is not 10, 3 into 7 minus 12 which is 21 minus 2 9, so a and d are the correct answers। Similarly, you can see that your again the kernel will satisfy all the properties, so your resolvent kernel will be e की power lambda, lambda is my 1 into 1 plus x square divided by 1 plus t square, और resolvent kernel पूछा नहीं है, so solution will be y is equal to e की power x integration from 0 to x resolvent kernel into f of t, so e की पावर t से मल्टीप्लाई करेंगे, e की पावर x रह जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, यू हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t, e की पावर x कंप्लीट बाहर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स t, fine, and if you put the limits from the 0 to x, tan inverse x minus tan inverse 0, fine, that is my complete solution। so now you can find the value of the e of 1, e 1 plus 2 into pi over 4, so that's a pi over 2, first option cancel, second is the correct answer। y of root 3, e raised to power root 3, 1 plus 4 pi over 3, third option cancel, fourth is the right answer of the problem। अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हो इस तरह के, आप मेरा ये वीडियो देखियो, इसमें ऑलरेडी मैंने 30 प्लस क्वेश्चंस रिलेटेड टू द रिजॉल्विंग कर्नल सॉल्व करे हुए हैं,
आप इस वीडियो को ओपन करिए, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। सेकंड कैटेगरी, जब भी आपके पास वोल्ट्रा इक्वेशन हो, फिर से वोल्ट्रा इक्वेशन है, लेकिन whenever this kernel is not satisfied my two properties that I mentioned in my previous type, that is a kxt is my 1 और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1 आ जाए, अगर तो ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड नहीं हो रही, then how you can find the resolvent kernel and the solution of the Volta equations. So for that case you have to check whether k of xt is satisfied by this property called as the convolution. दो ही तरह की नेचर होती है, चाहे तो ये के एक्स टी सेटिस्फाइड करेगा फर्स्ट प्रॉपर्टीज को और अदरवाइज कॉन्वोल्यूशन को। अगर तो ये कॉन्वोल्यूशन है देन यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन बाय यूजिंग द लैप्लस इनवर्स एंड सिमिलरली लैप्लस इनवर्स ऑफ द fx divided by 1 minus lambda times Laplace of the gx, and the resolvent kernel will be Laplace inverse of the gx divided by 1 minus lambda of gx. मेक श्योर स्टूडेंट्स, जब भी आप ये g निकालो, अगर आपकी लिमिट्स 0 से x है तो आपका जो भी फंक्शन होगा वो x माइनस की फॉर्म का होना चाहिए। फाइन, अगर आपका फंक्शन में कहीं पे मान लो t माइनस एक्स लिखा हुआ है और लिमिट 0 से x है, यू हैव टू टेक माइनस एज ए कॉमन। क्लियर, लाइक दिस केस। तो पहली बात देखो, आपका जो कर्नल है x माइनस टी, वो ये आपकी दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। फाइन, तो इसका मतलब ये आपका कर्नल पहले वाले मेथड से सॉल्व नहीं होगा। तो आपका सॉल्यूशन क्या है? लैप्लस इनवर्स, 0 से x है तो x से स्टार्ट है, तो लैप्लस ऑफ द 3 over s, लैप्लस ऑफ द x, व्हाट इज द लैप्लस? लैम्डा इज माय 1, लैप्लस ऑफ द s विल बी 1 over s स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? लैप्लस इनवर्स ऑफ 3s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस 1, यही आएगा। तो कितना हो जाएगा ये आपके पास? s over s minus 1, that will be my sin hyperbolic t, यही होता है आपके पास। क्लियर? नाउ वंस यू नो द u, तो अब आप फिल कर दो u ऑफ पाई, इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेते हैं। पाई, अच्छा आपको u प्राइम भी चाहिए, u प्राइम विल बी 3 cos hyperbolic t, और आई कैन राइट इन द टर्म्स ऑफ द एक्सपोनेंशियल e की पावर t माइनस e की पावर माइनस t, और u प्राइम विल बी 3 over 2 e की पावर t प्लस e की पावर माइनस ऑफ t। नाउ यू कैन चेक योर आंसर, u ऑफ पाई 2 e की पावर नहीं होगा, पाई पे तो दो प्लस माइनस दोनों आएंगे। फाइन, सेकेंड इज u प्राइम पे भी दोनों आएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। थर्ड वन इज u प्राइम, u दोनों को ऐड कर दो, तो जैसे ऐड करोगे दैट विल बी 3 e की पावर t, तो दैट्स सेटिस्फाइड। दोनों को माइनस करोगे e की पावर माइनस आएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। C इज माई राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन इज, नाउ यू कैन सी u इज द सॉल्यूशन ऑफ द वोल्टा इक्वेशंस। अब आप देखो दिस इज द फर्स्ट काइंड, बिकॉज आपके पास कहीं पे भी y ऑफ x या u ऑफ x फॉर्म ही नहीं दिया हुआ, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली चीज को लेफ्ट साइड पे ले जा रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? साइन ऑफ t माइनस हो गया ना ये। तो आपके पास, अगर मैंने क्या बताया आपको, इसी में अगर ये आपके पास 0 है तो यहाँ पे ये 1 कैंसिल हो जाएगा। फाइन, तो आप देखो इसमें सॉल्यूशन निकालते हैं, u क्या हो जाएगा? लैप्लस ऑफ साइन t डिवाइडेड बाय लैम्डा, कितना इसका? -1, तो माइनस माइनस प्लस इंटू लैप्लस ऑफ हाफ, प्लस ये 0 से t है ना, सो t से स्टार्ट होना चाहिए, यस 2 है, तो लैप्लस ऑफ साइन t, इसका बाद में लैप्लस इनवर्स। तो देखो कितना आ गया? 1 over s स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 over 2s प्लस 1 over s स्क्वायर प्लस, बाहर लैप्लस इनवर्स चल ही रहा है, एलसीएम ले लो, 2s ऊपर चला गया, s प्लस 1 होल स्क्वायर। अब आप इसका लैप्लस इनवर्स लेना आपको, 2 मैं बाहर ले रहा हूँ। फाइन, इसको मैं s प्लस 1 माइनस 1 और s प्लस 1, नाउ यू कैन यूज एज अ शिफ्टिंग फर्स्ट थ्योरम। Fine, so that is e की power t will be outside, e की power minus of t, sorry, so that will be s minus 1 over s square Laplace inverse। तो कितना हो गया सर? ये 2 e की power minus of t
1 माइनस टी, दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब आपको किस पे पूछा है? 1 पे, तो जैसे 1 फिल करोगे 1 माइनस 1 विल बी 0 इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। उम्मीद करता हूं आप वीडियो को लाइक कर दोगे, पार्ट बी भी बड़ी जल्दी आपको मिल जाएगा। चलिए, आपकी लिमिट क्या है? 0 से टी, तो आपको टी से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन ये एस से है तो इसमें पहले माइनस कॉमन ले लिया। फाइन, एक्स डी एस, और ये टी है और ये एक्स आपके पास। अब पूछा क्या है आपसे? रिजॉल्वेंट कर्नल। सो रिजॉल्वेंट कर्नल विल बी लैप्लस ऑफ द जी, तो जी आपका क्या है? माइनस ऑफ टी, 1 माइनस लैम्डा इज माई 1 इंटू लैप्लस ऑफ, तो कर दो कितना हो गया? लैप्लस ऑफ टी कितना होता है? 1 ओवर एस स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1 ओवर एस स्क्वायर। सो इफ यू टेक द एलसीएम, माइनस 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1, तो ये किसका होता है? लैप्लस इनवर्स। फाइंड द लैप्लस इनवर्स, दैट विल बी साइन ऑफ t is the right answer of the problem. Look at the next one. Laplace again is a 0 to t है, ये प्रॉपर्टीज आपका फिर नहीं सेटिस्फाइड कर रहा। You can see k of x is not equal to 1, so we can start with this solution. अच्छा, पहला सोल्यूशन तो सीधे निकल गया, u of 0 0 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 0 is my 0। फाइन, अगर तो ये पार्ट बी का होता तो मजा आ जाता। चलिए, तो सोल्यूशन निकालते हैं। लैप्लस इनवर्स, लैप्लस ऑफ द एफ एक्स 2 ओवर एस क्यूब, 1 माइनस, यहाँ पे x बनाना होगा तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, बट बिकॉज ऑफ द स्क्वायर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैम्डा इज माई 4 इंटू 2 ओवर एस क्यूब, तो ये कितना बन गया? लैप्लस इनवर्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय एस क्यूब माइनस 8। हो गया सर, इसका एस क्यूब का लैप्लस कैसे निकालते हैं? मैं आपको एक सिंपल शॉर्टकट ट्रिक्स बताता हूँ, कैलकुलेशन आप अपने आप कर लेना। फाइन, एस माइनस 2 प्लस बी एस प्लस सी डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4, ऐसे बनेगा ना। अब आप ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालोगे? ए की वैल्यू निकालने के लिए एस की वैल्यू को 2 सब्सटीट्यूशन कर दो। जैसे इसमें एस की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूशन करोगे तो आपके पास ए आ जाएगा माइनस 1 ओवर 6। पहले अब सी निकालते हैं। सी के साथ कोफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आई कैन सब्सटीट्यूट एस इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन में एस की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूशन कर दो, यू विल गेट द सी इज माई माइनस 2 ओवर 3। एंड बी कोफिशिएंट के लिए बी के साथ क्या लिखा हुआ है? एस। यू कैन मल्टीप्लाई the complete equation by s and take the limit as s approaches infinity, तो जैसे सब्स्टिट्यूशन करोगे you will get b is equal to minus 1 over 6। फाइन, ये आप अपने आप सेल्फ कर लोगे इतनी वैल्यू। a की वैल्यू प्लस 1 ओवर 6 आएगी, b will be minus 1 over 6, and then you can substitute the value। फाइन, इसमें से 1 over 6 माइनस 1 over 6 प्लस 2 over 3, अब आप इसके बाद एस स्क्वायर प्लस 3। फाइन, अब आप इसका लैप्लस इनवर्स ले लोगे, 1 ओवर 6 ई की पावर 2t, इसमें से माइनस 1 ओवर 6 मैं बाहर निकाल दे रहा हूं, तो ऊपर कितना बच गया? s माइनस 4 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 स्क्वायर। नाउ यू कैन यूज द शिफ्टिंग फर्स्ट थ्योरम एंड लेट मी नो योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। फाइन, ये आपका सोल्यूशन बन जाएगा ना। तो जैसे आप इसमें से बताइए आंसर कमेंट बॉक्स में कौन सा है। For more details, again 25 plus example इस तरह के ऊपर देखना चाहते हो, you can watch by this lecture part 2 Volterra equations। अब हम क्वेश्चन करते हैं फ्रेडमोल इक्वेशन की, जब आपके पास लिमिट्स क्या हो? कांस्टेंट्स हो। फाइन, अगेन अ वेरी वेरी सिंपल, जब भी आपको सिंगल, पहले तो हम बात करते हैं जब आपके पास सिंगल वेरिएबल हो, मतलब बीच में प्लस या माइनस ना लिखा हो। फाइन, देन यू कैन फाइंड द रिजॉल्वेंट कर्नल इज, जो भी दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स एक्स। जैसे सबसे पहले रिजॉल्वेंट कर्नल निकालते, इसका के निकालो कितना है? कोफिशिएंट ऑफ द y इज 1, तो आपका रिजॉल्वेंट कर्नल कितना हो गया? ओरिजिनल के 1 माइनस लैम्डा इंटू के ऑफ एक्स एक्स, दोनों में एक्स एक्स फिल करा 1। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, जितनी लिमिट दे रखी है आपको 0 से 1, कितना हो गया? 1। तो कितना आंसर हो गया? ये 3 ओवर 2 इज द राइट आंसर। तो सेकंड ऑप्शन आपका कट गया। फाइन, और बाकी जो सोल्यूशन निकालना है वो वैसे ही निकालना आपको। सोल्यूशन विल बी
ई की पावर एक्स प्लस ई प्लस 1, ये लैम्डा बाहर हो गया आपका। इसकी जगह पे कर्नल की जगह पे क्या कर देना, रिजोल्वेंट कर्नल, और y की जगह पे f ऑफ t, so that will be e की पावर t e प्लस 1 इंटू, अब आप इंटीग्रेट कर दो, इससे क्या हो गया, e की पावर x प्लस e प्लस 1, 3 इज आउटसाइड, 1/2, इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी, e की पावर t फ्रॉम 0 to 1 e minus 1, और e plus 1 is a constant, so that is my, so 1 and 1 will be cancelled, 2 and 2 will be cancelled, e की पावर x plus twice of e plus 1। अब देखो क्या पूछा आंसर में, y of 1 3 plus 1, y of 1 e, so 1 and 3rd is the right answer of the problem। चलिए लुक एट दैट अगेन, देखो आपका जो कर्नल है कांस्टेंट लिमिट्स है ना, एक ही है वेरिएबल, कहीं प्लस तो नहीं लिखा हुआ, जैसे ही आपको ये मिल गया तो इसका रिजोल्वेंट कर्नल क्या होगा, ओरिजिनल फंक्शन डिवाइडेड बाय 1 माइनस लैम्डा, इसको इंटीग्रेट कर दो एक्स एक्स के साथ, एक्स के लिमिट्स आर माई 0 to 1, तो कितना आंसर हो गया 1/3, कितना आंसर बन गया 3 इंटू एक्स टी। अब इससे पूछा नहीं है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज द रिजोल्वेंट कर्नल एट द पॉइंट 2,3, तो आप निकाल सकते थे ना इसमें। चलिए अब आपको निकालना है इसका सोल्यूशन, तो सोल्यूशन कैसे निकालोगे, फिर से सेम अप्रोच, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस इस कर्नल की जगह पे 3 इंटू एक्स टी, और y की जगह पे टी स्क्वायर, इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, सो दैट इज माई एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज आउटसाइड, इसे t क्यूब t4/4, so that will be 1/4, so your y will be my x square plus 3x divided by 2। अब देखो क्या पूछ रहा है आपसे, फर्स्ट ऑप्शन y of 0 is my 0, y of 1 is my 5/2, not satisfied, y of -1 minus 3/2 is a minus half, y of 1 is 5/2, if you add them that is the 2 which is not equal to 1। अब आपके पास डेरिवेटिव है, what is the y prime, 2x plus 3/2, now your target y prime 0, 3/2, y prime of 1 2 plus 3/2, so it's a 6, 3 plus 2 is a 5, that's a wrong option। Now look at the last option, y prime of -1 minus of 2 plus 3/2, y prime is a 2 plus 3/2, yes, fourth is the right answer of the problem। इस शॉर्टकट ट्रिक्स का भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यू कैन वॉच माय पार्ट 1 फ्रेडमोल इक्वेशन सॉल्यूशन, यू कैन गेट द राइट आंसर ऑफ द 25 प्लस क्वेश्चंस। और अगर आप रिजोल्वेंट करना देखना चाहते हो, यू कैन गेट दिस लेक्चर फ्रेडमोल रिजोल्वेंट कर्नल। अब हम बात करते हैं कैसे रिजोल्वेंट कर्नल निकालेंगे जब आपके पास बीच में प्लस या माइनस हो। फाइन, जब भी आपके पास ये रिजोल्वेंट कर्नल मोर देन वन वेरिएबल हो, योर फर्स्ट टारगेट इज टू राइट द मैट्रिक्स ए, और वो मैट्रिक्स ए कैसे निकालेंगे, बेस्ड ऑन माय दिस शॉर्टकट ट्रिक्स। इसमें ऑलरेडी मैं 25 प्लस एग्जांपल एक्सप्लेन कर चुका हूं, फाइन, आप इसको देखिए एंड लर्न करिए, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं एक बार, जो भी आपका कर्नल है, फाइन, पहले मैं इसको यहां पे लिख दे रहा हूं मैट्रिक्स ए, कितने वेरिएबल्स आपके पास, दो में डिवाइड है ना, तो इट्स माय 2 क्रॉस 2, इसके वेरिएबल को लिख लो 1 1, 3xt को x वाले अलग कर लो और t वाले अलग कर लो, क्लियर। अब आप देखो पहली वैल्यू कैसे लिखनी है आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इंटीग्रेट करो 0 से 1, फाइन, इसका इंटीग्रेट करा 0 से 1 1, सेकेंड वैल्यू दिस साइड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 3x और इंटीग्रेट करो फ्रॉम 0 to 1, तो 3x का इंटीग्रेशन कितना हो गया 0 से 1 में 3/2। नेक्स्ट वैल्यू यहां पे, इसको इधर से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया, x के साथ लिखना है इसे 3x², फाइन, इसको इंटीग्रेट करो फ्रॉम 0 to 1, x³/3 दैट इज माई 1, और लास्ट वैल्यू इधर चले जाओ, सो इसको इंटीग्रेट करो x फ्रॉम 0 to 1 दैट इज माई 1/2। समझ गए। हर बार अगर आपको मेरी किसी प्रीवियस वीडियो में अलग तरह से मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, उसको भूल जाइए,
इस शॉर्टकट ट्रिक से अपनाइए, यू विल गेट द राइट आंसर ऑलवेज। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहली वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सेकंड वैल्यू इस तरफ से मल्टीप्लाई करना है, ये थर्ड वैल्यू आपको जिगजैग में आपको, और फोर्थ वैल्यू आपको इस तरफ। क्लियर? नाउ हाउ यू कैन राइट द रिजॉल्वेंट कर्नल डायरेक्टली। रिजॉल्वेंट कर्नल, पहला कर्नल कितना है 1 प्लस 3xt, फाइन, माइनस लैम्डा, लैम्डा कितना कोफिशिएंट उतना ही है, फाइन। अब ध्यान से सुनिएगा, फाइन, लिखो मत, पहले देखो, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, 1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, पहले प्लस फिर थोड़ा सा दूर करके माइनस फिर प्लस और फिर अगली टर्म माइनस की, फाइन। अब इसके साथ कोफिशिएंट क्या आएगा, जिस तरह से आपने मल्टीप्लाई करा था, पहले क्या करा था 1, फिर क्या आया था 3x, फिर क्या आया था आपका 3xt, और फिर लास्ट में क्या आया था t, डिवाइडेड बाय, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, और सॉरी इसका आइगन वैल्यू के लिए लिखो, इसका क्या आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा सम ऑफ द डायगोनल्स, एंड डिटर्मिनेंट कितना हो गया 1 माइनस 3/4, दैट इज अ 1/4, फाइन। इसका कोफिशिएंट लिख लो 1 माइनस 2 और प्लस 1/, ये तो कोफिशिएंट्स आएंगे ना। लैम्डा की वैल्यू अगर तो यहाँ पे 1 लिखा होता या 2 लिखा होता तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते 2 के साथ। अब आप पीछे से लिखना शुरू करिए, लैम्डा स्क्वायर लैम्डा एंड कांस्टेंट, दैट इज माय रिजॉल्वेंट कर्नल, फाइन। मैं फिर कह रहा हूं फॉर मोर डिटेल्स, आप 25 प्लस एग्जांपल देखना चाहते हो, इस लेक्चर को सुनिए, डीजनरेट कर्नल में आप इसे लिख पाओगे। जैसे मैं एक और लिख के दिखा दे रहा हूं, इसकी मैट्रिक्स आपको लिखनी है, फाइन। तो पहले आप इस x को, इसमें x t तो लिखा ही नहीं हुआ, इसको 1, इसमें आपका x नहीं लिखा हुआ, इसको 1, और इधर से माइनस ऑफ 2t, लिमिट आपके पास क्या है 0 से 1, तो पहली वैल्यू मल्टीप्लाई करिए और इंटीग्रेट करिए, सेकेंड वैल्यू 1 इंटीग्रेट फ्रॉम द 0 to 1, थर्ड वैल्यू माइनस ऑफ 2x फ्रॉम 0 to 1, इट्स अ माइनस 1, और थर्ड वैल्यू माइनस 2x स्क्वायर इंटीग्रेट करिए -2/3। अगर कोई प्लस माइनस कैलकुलेशन मिस्टेक है दैट यू कैन डू इट बाय ऑन। तो रिजॉल्वेंट कर्नल कितना हो गया, ओरिजिनल कर्नल, फाइन, माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू गिवन नहीं है, नहीं तो आप लैम्डा फिल कर देते, फाइन। यहां से स्टार्ट करो माइनस, ये पहली वैल्यू प्लस फिर माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया ये, फाइन, प्लस माइनस प्लस और ये माइनस, इसके कोफिशिएंट क्या क्या आएंगे, पहली वैल्यू आपकी x के साथ, सेकंड वैल्यू इज 1, थर्ड वैल्यू इज माइनस ऑफ 2t, और फोर्थ वैल्यू विल बी माइनस ऑफ 2xt, माइनस माइनस प्लस 2xt डिवाइडेड बाय, इसका इक्वेशन लिख लो लैम्डा स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ लैम्डा, माइनस माइनस प्लस हाफ, फाइन, एंड डिटर्मिनेंट विल बी माइनस ऑफ हाफ प्लस 2/3, 4 1/6। तो आप लिख लो इसके कोफिशिएंट 1 लैम्डा और कांस्टेंट, पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो, इज द रिक्वायर्ड रिजॉल्वेंट कर्नल। चलिए अब इसी बेस पे इस क्वेश्चन को लिखते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स ए बनाते हैं क्विकली से, फाइन, क्या आपके पास x t x स्क्वायर t स्क्वायर, पहले मल्टीप्लाई करो फ्रॉम -2 से 2, तो ये कितना हो गया x स्क्वायर, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 से 2 इज x³/3, so 8 + 8 16/3। look at the next one is x³, that's a odd function, odd function की इंटीग्रेशन 0 हो गई। सिमिलरली x की पावर 4 करेंगे तो x की पावर 5 32 64/5, एंड इस क्यूब इस 0। तो डायगोनल, अगर तो आपके डायगोनल 0 है, ओके, रिजॉल्वेंट कर्नल लिख लेते हैं, xt प्लस x स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस लैम्डा, इसका कोफिशिएंट कितना है, फाइन, पहली वैल्यू 64/5 इंटू x इंटू टी, 0 तो 0 ही है, प्लस माइनस प्लस 16/3 प्लस माइनस प्लस, इसके साथ दूसरी वैल्यू क्या है x स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी बेसिकली लैम्डा -16/3 लैम्डा
16/5, so I can write 1 minus 16/3 lambda. लैम्डा आपके पास कितना है, λ/2, और दूसरा 1 माइनस 64/5 इंटू λ/2। आप इसको सोल्व कर लीजिए। और दूसरा मैं शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहा हूं, अगर आपके ये दोनों डायगोनल एंट्रीज आपके 0 हैं, फाइन, देन यू कैन राइट दी रिजॉल्वेंट कर्नल डायरेक्टली बाय फर्स्ट फंक्शन, और सेकंड इज x स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस लैम्डा कितना आपका, फाइन, इनटू पहली वैल्यू कितनी है 16/3, और सिमिलरली λ/2 इसकी वैल्यू कितनी है 64/5। इसको भी सॉल्व करोगे सेम आएगा। देखो एक्स टी जब दोनों से कॉमन निकलेगा तो कितना बन गया 1 माइनस 32/5 लैम्डा, तो देखो ये इधर से कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट द एक्सप्रेशन। तो देखो किसके साथ मैच कर गया, is a 8, take the LCM, second is the right, first is the wrong answer. Now अब आपका A हो गया, अब आपको क्या निकालना है, सोल्यूशन निकालना है। तो सोल्यूशन के लिए फिर से वैसे ही करेंगे, x प्लस λ/2 फ्रॉम -2 to 2, इस रिजॉल्वेंट कर्नल, इस कर्नल की जगह पे ये रिजॉल्वेंट कर्नल, फाइन, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू t के साथ, एंड इंटीग्रेट करेंगे -2 से 2। तो जैसी ये पहली क्वांटिटी होगी, ये तो ओड बन जाएगा ना t³, तो ये वाले पार्ट की तो 0 होगी, और इधर वाले पार्ट में 3x डिवाइडेड बाय 3 माइनस 8 लैम्डा इंटू टी स्क्वायर, यही आएगा। अब आप कर लो सॉल्व इसे, प्लस 3 लैम्डा x/2 3 माइनस 8 लैम्डा t³ बाय 3 फ्रॉम -t to 8/3 16/3, so 2 into 8, 3 से 3 cancel, and your target is to find the value at the point 1, so 1 plus 8 lambda 3 minus 8 lambda, so fourth is the right answer of the problem. For more detail, as I mentioned, you must watch it. अगर आप रियली में प्रैक्टिस करना चाहते हो और अपना एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, जो मैं वीडियोस बता रहा हूँ, यू मस्ट वॉच इट। चलिए अब आपके पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और उसको आपको वोल्ट्रा इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ये तो बोला ना, और आपको एफ के ऊपर पूछा है। वेरी वेरी सिंपल, सबसे पहले इसका कोफिशिएंट 1 बना लो, पहले से बना हुआ है, फाइन। तो अगर मैं आपको ये इक्वेशन इस तरह से लिखूं, प्लस ए वाई प्राइम प्लस बी वाई विच इज इक्वल टू आर, और जो भी आपके पास इनिशियल वैल्यू है अल्फा, और y prime at the point 0 is my beta. You can write directly the value of the f is alpha plus beta into x plus what is the coefficient a into x plus the right hand side, इसका order कितना है 2, double integration of the right hand side. That is the solution of the function f. Similarly अगर आपको कर्नल निकालना होगा, ये तो सेकंड ऑर्डर है, इसके साथ सेकंड ऑर्डर नहीं है, तो दैट इज a इंटू एक्स माइनस टी, और इस तरह से कर लेते हैं, कोफिशिएंट कितना है a प्लस b इंटू एक्स माइनस टी, क्लियर। लेकिन आपको सबसे पहले f के बारे में निकालते हैं। अल्फा कितना आपका 1, बीटा कितना है 2 माइनस ऑफ 2, सी कितना, ए कितना है -3, और 2 बार इंटीग्रेशन करना है आपको 4 sin x का फ्रॉम 0 to x। पहली बार करेंगे -4 cos x फ्रॉम 0 to x, क्लियर। तो कितना हो गया ये -4 cos x माइनस माइनस प्लस, अब फिर से इसका इंटीग्रेट कर दो, दैट विल बी -4 sin x प्लस 4x फ्रॉम 0 to x, तो कितना बन जाएगा ये प्लस 4x माइनस 4 sin x, क्लियर। तो ये आपका fx हो गया, तो कितना बन गया ये 1 माइनस x माइनस 4 sin x is your required function of the f, क्लियर। अब आप निकालो क्या चाहिए, f प्राइम कितना हो गया -1 माइनस 4 टाइम्स cos x, तो f प्राइम ऑफ पाई, सो पाई पे कितनी आ जाएगी -1,
-1 plus 4, 3, satisfied. What is the value of the f of pi? Pi, sine pi is a 0, that will be 1 minus pi. And what is the value of the f prime of pi? Cos of pi is -1, that is a 3. If you add them, 4 minus pi, satisfied. 2 minus pi, not satisfied. F of 0, 0, 0, 1, and f prime 0, cos of 0 is 1, that will be -5. If you add them, -4, yes, 1, 2, and 4 are the right answer of the problem. Clear? मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपको कर्नल निकालना होगा, that will be minus of a minus of b into x minus t. That is the shortcut tricks for finding the kernel when you transform the initial value problem to the Volterra equation. Make sure the coefficient must be 1. अगर आपको यहाँ पे किसी कर्नल पे पूछ ले जाता है 0,3 पे, फाइन, द कर्नल इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ x, t, तो आप अपना a और b कंपेयर करके फिल कर सकते हो. समझ में आ गया? दिस इज द अबाउट द पार्ट 1. अगर आप रियली इंटरेस्टेड हो पार्ट 2 के, जिसमें से ये पार्ट सी का क्वेश्चन बनता है हमेशा, फाइन, अगर आप इंटरेस्टेड हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड यू कैन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, put the mark as interested to watch the part B, then I will upload the solution for you very soon. Till then, you can share this video, subscribe my YouTube channel. Best of luck, students.